Hello everyone. So today I am going to take up a new topic of ICSE class 10th syllabus, that is Julius Caesar Act 3 Scene 2. So basically in this scene we'll see that how Brutus gives explanation to the common people that why did he kill Caesar, as well as Antony also comes out to give his own explanation that how Caesar deserved to die. इस सीन में हम लोग देखेंगे दैट हु वॉज अ बेटर ओरेटर, ब्रूटस और एंटनी. कौन ऑडियंस को, दैट मीन्स कौन जनरल पब्लिक को ज़्यादा सेटिस्फाई करता है कि सीजर किस तरह से डेथ डिजर्व करता है. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन. द स्पीचेस आर रियली नाइस एंड this scene actually captivates the mind of the readers also. So let's begin. Act 3 Scene 2, the forum. Enter Brutus, Cassius and a throng of citizens, a group of citizens. So आप यहाँ पे हम इससे पहले देख चुके हैं Caesar has been already killed, Caesar को assassinate कर दिया गया है. नाउ खूब सारे लोग आ रहे हैं, ब्रूटस भी हैं, कैसियस भी हैं, बहुत सारे लोग हैं एंड सब उनको फॉलो कर रहे हैं बिकॉज एवरी वन वॉन्ट्स द रीज़न फॉर सीजर्स डेथ. क्यों आपने सीजर को मारा, उसका डेथ का रीज़न दीजिए. Citizens, we will be satisfied. Let us be satisfied. So हमें जवाब दो, हमें जवाब चाहिए, क्यों तुमने सीजर को मारा. Give us the reason. We want a satisfactory reason. Brutus, then follow me. Give me audience, then follow me. Listen to me. सब लोग मेरी बातों को ध्यान से सुनो. Friends, Cassius, go you into the other street and part the numbers. See, there were too many people. बहुत लोग थे. तो he is advising Cassius कि आधे लोग को तुम दूसरी स्ट्रीट में ले जाओ, आधे लोग को तुम दूसरे, हम यहाँ पे सुना देते हैं अपनी स्पीच, अपने रीजंस देते हैं, आधे लोग को तुम दूसरी स्ट्रीट पे ले जाके रीजंस दो. Those that will hear me speak, let them stay here. Those that will follow Cassius, go with him. So he is telling कि जो मेरे साथ रुकना चाहते हैं, जो लोग मेरी स्पीच सुनना चाहते हैं वो यहाँ पे रुकें, जो लोग कैसियस के साथ जाना चाहते हैं तो वो लोग कैसियस के साथ चले जाएं. And public reasons shall be rendered of Caesar's death, and we will give a public explanation that how Caesar deserved death. क्यों हमने सीजर को मारा, सीजर डेथ कैसे डिजर्व करता था, उसका हम एक पब्लिक एक्सप्लेनेशन देंगे. फर्स्ट सिटीजन, आई विल हियर ब्रूटस स्पीक. पहला सिटीजन कहते हैं मैं तो ब्रूटस की स्पीच सुनूंगा. सेकेंड सिटीजन, आई विल हियर कैसियस and compare their reasons when severely we hear them rendered. So we can say that second citizen was a bit intelligent kind of a man. वो कहता है ठीक है तुम ब्रूटस की सुन लो, मैं कैसियस की सुनता हूँ, and then after that we'll compare both their speeches. हम देखते हैं उनकी speeches को compare करके कि इन्होंने क्या क्या reasons दिए हैं. सीवियरली का मतलब होता है सेपरेटली, दोनों का अलग अलग हम लोग सुनते हैं और फिर इनके रीजंस को हम कंपेयर करते हैं. Exit Cassius with some of the citizens. So Cassius चला जाता है along with some citizens. Brutus goes into the pulpit. So Brutus goes on the platform in order to deliver his speech. Third citizen, Noble Brutus is ascended. Noble Brutus has climbed up the platform. वो platform पे पहुंच गए हैं. Silence. So everyone be silent. सब शांत हो जाएं. Brutus. So Brutus is, in this speech we'll see that Brutus is projecting himself as a patriot. He is a lover of Rome. He loves his country. So उसी के बेसिस पे उसने ये स्पीच दी है. देखो बहुत इमोशनल गेम खेला है. देखो ब्रूटस एक्चुअली में सीजर से नफरत नहीं करता था, लेकिन उसको इस तरह से मैनिपुलेट किया गया था, तो उसी के बेसिस पे उसकी ये स्पीच है. Be patient till the last. So everybody please be patient till I have finished my speech till the last. सब लोग बिल्कुल आखिरी तक बिल्कुल शांति से सुनना. Romans, countrymen and lovers. Romans, countrymen, lovers. Hear me for my cause. Hear me for my explanation. जो मैं explanation देने जा रहा हूँ उसकी वजह से मुझे ढंग से सुनना. एंड बी साइलेंट दैट यू मे हियर. और शांति से सुनना ताकि तुम मेरी हर पॉइंट को, हर बात को अच्छे से सुन सको. शांति से, इतने लोग हैं, सब लोग शांति से मेरी स्पीच को सुने. Believe me for mine honor and have respect to mine honor that you may believe. See, everyone knew that Brutus was a very respected man. So वही वो कह रहा है, believe me for my honor because of my honorable character. Please believe me. मेरी बातों को believe करिए. एंड हैव रिस्पेक्ट टू माई ऑनर दैट यू मे बिलीव. और मेरे ऑनर को रिस्पेक्ट दीजिए ताकि इट बिकम्स ईजियर फॉर यू टू बिलीव मी. मेरी बातों पे विश्वास करिए आप.
सेंश्योर मी इन योर विजडम, जज मी इन योर विजडम। अपने दिमाग से मेरी बातों को जज करिएगा, मेरी बातों को अपने दिमाग में इवैल्यूएट करिएगा, क्या मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है या नहीं है, सोचिएगा। अवेक योर सेंसेस, अवेक मतलब बी अलर्ट, अपने सेंसेस को सारे अवेक कर लीजिए, जागरूक कर लीजिए, सो दैट यू कैन ईजिली बी एबल टू जज मी, अच्छे से जज कर सकें। जज मी करिए, मुझे अच्छे से जज करिए। दैट यू मे द बेटर जज, सो दैट यू कैन जज मी इन द परफेक्ट वे, ताकि आप मुझे अच्छे से जज कर सकें। अपने सारे आँख नाक कान ओपन करके मेरी बातों को सुनिए, ताकि आप मुझे अच्छे से जज कर सकें। ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा। इफ देयर बी any in this assembly, any dear friend of Caesar, to him I say that Brutus's love to Caesar was no less than his. So he is playing an emotional card. वो क्या कह रहा है, अगर इस असेंबली में कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ही क्लोज फ्रेंड ऑफ सीजर है, तो उससे मैं कहना चाहता हूँ कि ब्रूटस सीजर से उससे कम प्यार नहीं करता है। जितना वो पर्सन सीजर से प्यार करता था, उतना ही प्यार मैं भी सीजर से करता था। If then that friend demands why Brutus rose against Caesar, this is my answer. तो अब वो बंदा मुझसे ज़रूर पूछेगा कि अगर तुम सीजर से प्यार करते थे तो तुमने क्यों सीजर को मारा? अगर तुम सीजर से इतना ही प्यार करते थे तो why did you kill him? So this is my answer. Not that I loved Caesar less, but that I loved Rome more. ऐसा नहीं था कि मैं सीजर से कम प्यार करता था, बस बात ये थी कि मैं अपनी कंट्री से ज़्यादा प्यार करता था। सीजर तो एक इंडिविजुअल है, कंट्री एज अ होल है, तो मैं अपनी कंट्री से बहुत प्यार करता था। इस वजह से मुझे अपने डियर फ्रेंड को मारना पड़ा। एक डियर फ्रेंड के अगेंस्ट में सिर्फ इस रीज़न से गया हूँ क्योंकि मैं अपनी कंट्री को बहुत बहुत प्यार करता था। तो ही इज़ जस्ट पोर्ट्रेइंग हिमसेल्फ एज अ पैट्रियट। उसने जो भी उसने किया वो एक देशभक्त की तरह किया। Had you rather Caesar were living and die all slaves than that Caesar were dead to live all free men? What would you prefer? कि सीजर जिंदा रहता और आप सब लोग स्लेव की तरह रहते, या सीजर सिर्फ एक मर गया और आप सब लोग एक फ्री मैन की तरह रहना चाहते हो? कौन ऐसा बंदा है जो फ्री मैन नहीं रहना चाहता है? कौन ऐसा पर्सन है जो स्लेव की तरह रहना चाहता है? तो उसी पे वो उठाता है सवाल। ये बताइए, क्योंकि सीजर तो डिक्टेटर था, तो आप मुझे बताइए आप लोग क्या चाहते हो, कि सीजर जिंदा रहे और आप सब लोग स्लेव की तरह रहें, या भाई सीजर एक मर गया और आप सब लोग एक फ्री मैन की तरह रहें? As Caesar loved me, I weep for him. As Caesar loved me, मैं उसके लिए रोता हूँ। वो मुझे बहुत मानता था, मुझे बहुत दुख है उसके डेथ का। As he was fortunate, I rejoice at it. वो बहुत किस्मत वाला था, मैं सेलिब्रेट करता हूँ इसके लिए, मैं उसकी हर अचीवमेंट पे सेलिब्रेट करता था। As he was valiant, valiant मतलब ब्रेव, I honor him. वो ब्रेव था, मैं उसके लिए उसको ऑनर करता था। But as he was ambitious, I slew him. Slew मतलब killed him. लेकिन वो ambitious था, इसलिए मैंने उसको मारा। So this is the main reason he gives, that Caesar was ambitious and this is the reason why I killed him. So as he was ambitious, I killed him. So यहाँ पे different कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सीजर के लिए मेरा डिफरेंट रिएक्शन है। भाई वो दोस्त था, मैं उससे प्यार करता था, ब्रेव था, मैं उसको ऑनर करता था, लेकिन क्योंकि वो एम्बिशियस था मैंने उसको स्ल्यू कर दिया, मैंने उसको मार दिया। देयर इज टीयर्स फॉर हिज लव, जॉय फॉर हिज फॉर्च्यून, ऑनर फॉर हिज वेलर एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन। सो उसके लव के लिए मेरे पास टीयर्स हैं, उसके फॉर्च्यून के लिए मेरे पास हैप्पीनेस है, जॉय है, मैं बहुत खुश होता हूँ जब वो फॉर्च्यूनेट होता था। ऑनर फॉर हिज वेलर, उसकी स्ट्रेंथ के लिए मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उसको ऑनर करता हूँ। एंड डेथ फॉर हिज एम्बिशन, बिकॉज ही वॉज एम्बिशियस, मैंने उसको डेथ दी। हु इज हियर सो बेस that would be a bondman. Bondman मतलब slave. So and bondman slaves they had no rights. So यहाँ पे कौन ऐसा बेस लेवल का है, कौन ऐसा बंदा है जो अपने आप को एक स्लेव की तरह देखना चाहता है? कौन है जो यहाँ पे स्लेव की तरह जीना चाहता है? कौन ऐसा है बताओ? If any speak, for him have I offended. अगर कोई ऐसा बंदा है जो कि स्लेव की तरह जीना चाहता है, बताओ उसके लिए मैंने बुरा किया है, उसको मैंने ऑफेंड किया है, उसके लिए मैंने गलत किया है जो मैंने सीजर को मारा है। Who is here so rude that would not be a Roman? So ऐसा कौन सा पर्सन है who would
प्रिफर टू बी अ स्लेव एंड नॉट अ रोमन, अगर कोई ऐसा है तो मैंने उसके लिए ऑफेंड किया है, बाकी तो मैंने किसी के लिए गलत किया ही नहीं है, मैंने तो सिर्फ रोम के लिए सीजर को मारा है, सीजर की डेथ में ही रोम की भलाई है। इफ एनी स्पीक फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड, अगर कोई ऐसा है तो बोलो उसके लिए मैंने गलत किया है। हु इज हियर सो वाइल, वाइल मतलब चीप, दैट विल नॉट लव हिज कंट्री, कौन ऐसा यहाँ पे चीप है जो अपनी कंट्री से प्यार नहीं करता है? हाँ हाँ, सीजर को जिंदा रहने दो, उसको डिक्टेटर रहने दो, हम लोग स्लेव की तरह जी लेंगे, कौन ऐसा है बताओ, कोई ऐसा है? इफ एनी स्पीक फॉर हिम हैव आई ऑफेंडेड, अगर कोई ऐसा है तो बोलो उसके लिए मैंने गलत किया है, उसके लिए मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हुई है। आई पॉज फॉर अ रिप्लाई, मैं वेट कर रहा हूँ, अगर कोई ऐसा बंदा है तो बोलो आई एम वेटिंग फॉर अ रिप्लाई। सो बेसिकली ही इज सेइंग दैट हैड सीजर बीन अलाइव he would have made you all slaves. So who is here such kind of a man who would prefer to live as a slave? कौन ऐसा बंदा है? अगर कोई है तो बताओ। सिटीजन, नन ब्रूटस, नन। अगर कोई ऐसा है भी जो कि सीजर को डिफेंड करता, लेकिन कोई ये थोड़ी ना बोलेगा कि हाँ भाई मैं एक स्लेव की तरह जीना चाहता हूँ, कोई ऐसा नहीं बोलेगा। एवरीवन लव्स हिज और हर फ्रीडम, तो वही सिटीजन चिल्लाते हैं क्या, नन ब्रूटस, नन, कोई ऐसा नहीं है ब्रूटस। देन none have I offended, so he is again presenting himself as an impartial person, मैंने तो कोई गलती नहीं की है, देखो मैं बिल्कुल impartial हूँ, कैसे देखना। then none have I offended, मतलब इसका तो मतलब है कि मैंने किसी को offend नहीं किया है। I have done no more to Caesar than you shall do to Brutus. See, if Brutus also becomes a dictator like Caesar, then you can also kill me. मैं तुम लोग को ये छूट दे रहा हूँ कि अगर कभी ब्रूटस सीजर की तरह डिक्टेटर बन जाए तो तुम भी मेरे साथ वही करना जो मैंने सीजर के साथ किया है। The question, the reason of his death is enrolled in the capital. So I have given a valid reason and the reason has been recorded in the capital why we have killed Caesar. Caesar किस तरह से death deserve करता था, हमने Caesar को क्यों मारा, उसका पूरा reason हमने mention कर दिया है। It has been enrolled in the capital. His glory not extenuated, उसकी ग्लोरीज, उसकी अचीवमेंट्स कहीं पे भी लेस नहीं किए गए हैं। भले ही सीजर हमारे अगेंस्ट था, भले ही वो एम्बिशियस था, लेकिन फिर भी हमने एग्जैक्टली, आई एम ए वेरी इम्पार्शियल, वो इनडायरेक्टली बोल रहा है कि हम लोग बहुत इम्पार्शियल हैं भाई, जो जैसा था बिल्कुल वैसा ही किया है। सो उसकी ग्लोरीज हमने कहीं पे भी कम नहीं की हैं। वेर इन ही वॉज वर्दी, जहाँ जहाँ वो वर्दी था, जहाँ जहाँ वो डिजर्व करता था, उसको वो हम लोग ने दिया है। नॉर हिज ऑफेंसेस एनफोर्स मतलब हाईलाइटेड, और उसकी मिस्टेक्स, ऑफेंसेस मीन्स मिस्टेक्स कहीं पे भी हाईलाइट नहीं किए हैं। फॉर विच ही सफ़र्ड डेथ, जिसके लिए वो डेथ सफ़र कर रहा था, दैट मीन्स उसकी जो गलतियाँ थी जिसकी वजह से उसको मारा गया है, दैट मीन्स हिज एम्बिशन एंड ऑल, उसको हम लोग ने कहीं हाईलाइट नहीं किया है। जो एक सही तरीका था बिल्कुल वैसे ही हमने सीजर को प्रेजेंट किए, सीजर के डेथ के रीजन्स हमने वही सब कुछ कैपिटल में एनरोल किए हैं। Enter Antony and others with Caesar's body. So at this moment Antony and others जो हैं वो लोग आते हैं सीजर की बॉडी लेके। Here comes his body mourned by Mark Antony. So here comes his body which is mourned by, mourned मतलब lamented by Mark Antony. Mark Antony is lamenting on the death of Caesar, who though he had no hand in his death shall receive the benefit of his dying. So he is making everyone very clear that Antony does not have any hand in the assassination of Julius Caesar. एंटनी बिल्कुल निर्दोष है, उसका कोई हाथ नहीं है, बट स्टिल ही विल हैव ऑल द बेनिफिट्स, सारा बेनिफिट्स उसको मिलेगा सीजर की डेथ से, जो भी कॉमनवेल्थ होगा, जो भी सारा सब लोग को मिलेगा उसको भी मिलेगा। अगेन ही इज शोइंग दैट आई एम सो इम्पार्शियल, ऑल्दो एंटनी इज फ्रेंड ऑफ सीजर, फिर भी हम एंटनी को भी उतना ही बेनिफिट देंगे जितना किसी और को मिलेगा। अ प्लेस इन द कॉमनवेल्थ as which of you shall not, each of you shall also get the benefit जो कि एंटनी को भी मिलेगा। With this I depart, ये कह के मैं यहाँ से जा रहा हूँ। That as I slew my best lover for the good of Rome, I have the same dagger for myself when it shall please my country to need my death. See, जिस डैगर से मैंने जूलियस सीजर को मारा है, द सेम डैगर कैन बी यूज्ड अपॉन मी वेन एवर माई कंट्री फील्स दैट आई हैव बिकम अ बर्डन ऑन माई कंट्री, या मैं एक डिक्टेटर बन गया हूँ। जब भी मेरी कंट्री को मेरी डेथ की रिक्वायरमेंट हो, वो सेम डैगर आप लोग मेरे अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। सो ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू प्रेजेंट दैट सिंस सीजर जो था वो एम्बिशियस था, उसको मार दिया, अगर मैं कभी एम्बिशियस बनता हूँ आप मुझे मार दो, कोई गलत बात नहीं की गई है भाई।
Citizen. Live Brutus live. So citizens are very satisfied with the speech of Brutus. देखो Brutus ने सिर्फ एक रीज़न दिया है that he was ambitious. अच्छा, उसने कोई एग्जाम्पल्स भी नहीं दिए हैं कि क्यों सीजर एम्बिशियस था, क्या रीज़न था उसके एम्बिशन का, कैसे प्रूव होता है कि वो एम्बिशियस था, ये सब कहीं पे भी नहीं है. लेकिन फिर भी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो गए हैं कि हाँ भाई जो ब्रूटस था वो सही बोल रहा है, सीजर सच में बहुत एम्बिशियस था एंड ऑल दैट. फर्स्ट सिटीजन, bring him with triumph home onto his house. विक्टोरियसली हम लोग को इसको घर ले जाना चाहिए, जय हो ब्रूटस जय हो करके हम लोग को पूरा प्रोसेशन निकालना चाहिए. सेकंड सिटीजन, give him a statue with his ancestors. So Junius Brutus was a person who established democracy in Rome. तो उनके बहुत सारे स्टैचूज और ब्रूटस के पहले भी जो एंसेस्टर्स थे उनके स्टैचूज लगे हुए थे. तो वही ये लोग सजेस्ट करते कि ब्रूटस ने हम लोग को एक टायरेंट से बचाया है, उसने रोम के लिए इतना बड़ा काम किया है, तो इसको भी एक स्टैचू देना चाहिए एंसेस्टर्स के साथ. थर्ड सिटीजन, लेट हिम बी सीजर. सो अगेन देखो सीजर यहाँ पे दिखाया है कि देखो जो सिटीजन्स हैं ना, दे आर नॉट वेरी एजुकेटेड. सीजर को मारा है एम्बिशन के लिए, सीजर को हटाना मजबूरी हो गया था, लेकिन फिर भी ये क्या बोल रहे हैं, लेट हिम बी सीजर, इसको एम्परर बना देते हैं. फोर्थ सिटीजन, सीजर्स बेटर पार्ट शैल बी क्राउन्ड इन ब्रूटस. नहीं, सीजर की जो अच्छाइयाँ हैं ना, सिर्फ वही चीज़ हम लोग ब्रूटस में क्राउन करेंगे, वही चीज़ ब्रूटस में होनी चाहिए. सी ब्रूटस हैज़ हिज ओन गुड क्वालिटीज़ और सीजर की सिर्फ गुड क्वालिटीज़ ब्रूटस में डालते हैं. फर्स्ट सिटीजन, वील ब्रिंग हिम टू हिज हाउस विद शाउट्स एंड क्लैमर्स. हम लोग जय ब्रूटस करते हुए इसको लेके जाना चाहिए, हम लोग को बहुत अच्छा इन्होंने किया है. ब्रूटस, माई कंट्रीमैन. सेकेंड सिटीजन, पीस साइलेंस ब्रूटस स्पीक. सो ब्रूटस इज एड्रेसिंग द पब्लिक, और पब्लिक इतना ज़्यादा उससे इन्फ्लुएंस हो चुके हैं कि तुरंत सब शांत होते, शांत हो जाओ, ब्रूटस स्पीकिंग. फर्स्ट सिटीजन, पीस हो ब्रूटस. Good countrymen, let me depart alone. So this was a blunder of Brutus. Brutus की सबसे बड़ी मिस्टेक ये है क्या, let me depart alone. अगर वो शायद स्टे कर गया होता वहाँ पे, जब एंटनी को स्पीच देने दिया जा रहा था, अगर वो स्टे कर जाता तो शायद एंटनी इस लेवल पे लोगों को इंसाइट नहीं कर पाता, वो बीच में रोक लेता. लेकिन वो क्या करता है, let me depart alone, मैं अकेले जाऊँगा. For my sake, stay here with Antony, and everyone stay here with Antony. Antony के साथ यहाँ पे रुक के उसकी स्पीच सुनो. Do grace to Caesar's corpse. You should actually show respect to Caesar's dead body. सब लोग रुकिए यहाँ पे और सीजर की डेड बॉडी को रिस्पेक्ट पे करिए. And grace a speech tending to Caesar's glories and pay respect to Caesar's dead body. और एंटनी की स्पीच को सुनिए जिसमें वो सीजर की ग्लोरीज को हाईलाइट करेगा, सीजर के अचीवमेंट्स को हाईलाइट करेगा. Which Mark Antony by our permission is allowed to make. So यहाँ पे फिर अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम लोग कितने अच्छे हैं कि we have given permission to Mark Antony, although वो इस चीज़ में शामिल नहीं है, फिर भी हमने उसको परमिशन दी है कि वो आए और मार्क एंटनी अपनी स्पीच के थ्रू सीजर की अच्छाइयों को हाईलाइट करें. I do entreat you, I do request you, not a man depart, not a man should go from here. Save I alone, accept me. Till Antony have spoke. जब तक एंटनी कंप्लीट नहीं कर लेते अपनी स्पीच, सब लोग यहाँ पे सुनेंगे, सब लोग यहाँ पे खड़े होंगे, सब लोग यहाँ पे एंटनी की स्पीच को सुनेंगे. तो दिस वॉज अ ब्लंडर ऑन पार्ट ऑफ ब्रूटस. ब्रूटस को पहले तो परमिशन नहीं देना चाहिए था. ही वॉज नॉट फार साइटेड. हम कह सकते हैं कि कैशियस वॉज अ वेरी फार साइटेड मैन. उसने पहले ही मना किया था, यू डोंट अंडरस्टैंड ब्रूटस, इसका क्या इफेक्ट होगा, आई नो नॉट व्हाट मे हैपन बट आई लाइक इट नॉट, वो ये बोलता है. लेकिन ब्रूटस वॉज ओवर कॉन्फिडेंट. उसको क्या लगता है, अरे एंटनी है, ही इज़ मोर ऑफ अ गेमसम पर्सन, कुछ करवर तो पाएगा नहीं, क्या फ़ायदा, रहने दो, कुछ नहीं कर पाएगा, ही इज़ अ प्लेन ब्लंट मैन, वो क्या करेगा. तो इस वजह से वो उसको परमिशन दे देता है. और सबसे बड़ी गलती क्या करता है, वहाँ से खुद चला जाता है. ब्रूटस एग्जिट. ब्रूटस यहाँ से चला जाता है. फर्स्ट सिटीजन, स्टे हो, let us hear Mark Antony. So initially जो citizens थे, they were not ready also to hear Antony's speech. They were not interested because they were highly satisfied with the speech of Brutus. अब वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है रुक जाते हैं, ब्रूटस ने बोला है. Third citizen, let him go up to the public chair. We'll hear him. Noble Antony go up. ठीक है, नोबल एंटनी को जाने दो, पब्लिक चेयर पे जाने दो, हम लोग सुनते हैं.
Antony, for Brutus's sake I am beholding to you. For the sake of Brutus I am grateful to you all. मुझे ये मौका मिला है ब्रूटस की वजह से, मैं इसका बहुत आभारी हूँ आप सबका. Goes up to the pulpit. First citizen, what does he say of Brutus? देखो इतना ज़्यादा ये लोग इन्फ्लुएंस्ड है ब्रूटस से. क्या बोला इसने ब्रूटस के बारे में, क्या बोला इसने ब्रूटस के बारे में. First citizen, he says for Brutus's sake he finds himself beholding for us all. अरे वो तो ये बोल रहा है कि ब्रूटस की वजह से he is actually able to come and speak to us. Fourth citizen, it were best he speak no harm of Brutus here. So effect of Brutus speech, कितना पावरफुल इफेक्ट है. देखो अच्छा है कि वो ब्रूटस के अगेंस्ट कुछ ना बोले, उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी एंटनी के लिए. फर्स्ट सिटीजन, दिस सीजर वॉज अ टायरेंट. सीजर तो सच में एक टायरेंट है. थर्ड सिटीजन, ने दैट इज सर्टेन वी ब्लेस दैट रोम इज रिड ऑफ हिम. नहीं बहुत हम लोग लकी हैं कि रोम को उससे छुटकारा मिल गया यार. सही बात है, ही वॉज अ टायरेंट. सेकेंड सिटीजन, पीस, लेट अस हियर व्हाट एंटनी कैन से. अब सब शांत हो जाओ, सुनते हैं एंटनी क्या बोलता है. एंटनी, यू जेंटल रोमन्स सिटीजन्स, पीस हो, लेट अस हियर हिम. सब शांत हो जाएं, हम लोग उनको सुन रहे हैं. एंटनी, फ्रेंड्स रोमन्स कंट्रीमेन, lend me your ears. So this is a very famous speech, lend me your ears. So friends, Romans, countrymen, I want your complete attention. मुझे पूरा ध्यान से सुने. I come to bury Caesar, not to praise him. मैं तो यहाँ पे सीजर के burial के लिए आया हूँ, उसकी तारीफ करने तो आया नहीं हूँ. The evil that men do live after them. The good is oft interred with their bones. देखो यार ये तो सच्चाई है कि इंसान जो अच्छाई करता है लोग उसको भुला देते हैं, सिर्फ उसकी बुराई ही तो याद रहती है. द गुड इज ऑफ एंटर्ड विद देयर बोन्स. तो गुड जो भी अच्छी डीड्स होती हैं पर्सन की, इट इज़ ऑफन बरीड विद देयर बोन्स. जैसे जब बॉडी बरी की जाती है वैसे ही गुड डीड्स भी लोग भूल जाते हैं, अच्छाइयाँ सब भूल जाते हैं. evil that men do lives after them. even the evil जो चीज़ें हैं, जो बुरी चीज़ें हैं, evils even live after their death. लोगों को सिर्फ बुराइयाँ याद रहती हैं. हाँ भाई सीजर एम्बिशियस था वो याद है, बाकी सब लोग भूल जाते हैं. So let it be with Caesar. तो अगर ऐसा है तो सीजर के साथ भी होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई. सबके साथ ऐसा होता है कि अच्छाइयाँ सब भूल जाते हैं, सिर्फ बुराइयाँ रह जाती हैं. Noble Brutus had told you Caesar was ambitious. If it were so, it was a grievous fault. नोबल ब्रूटस ने आपसे ये बोला है कि सीजर वॉज एम्बिशियस. अगर ऐसा है तो ये तो बहुत सीरियस फॉल्ट है. इफ इट वॉज सो, इट वॉज अ ग्रीवियस फॉल्ट एंड ग्रीवियसली हैड सीजर आंसर्ड इट. अगर ऐसा है तो ये तो बहुत सीरियस फॉल्ट है एंड सीरियसली हैज सीजर पेड फॉर इट. उसने पे भी कर दिया बाय गिविंग हिज लाइफ. वो अपनी लाइफ देखे उसने ये जो फॉल्ट है, उस जो मिस्टेक है उसके लिए पे कर दिया है. हियर अंडर, सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये आयरॉनिकल है. अभी आगे हमें पता चलेगा कि वो रियल टर्म्स में ये सारी बातें नहीं बोल रहा है, वो आयरॉनिकल बोल रहा है. लेकिन ये चीज़ बाद में लोग रियलाइज करते हैं. नोबल ब्रूटस वो खुद अपने मुंह से कहीं पे भी नहीं बोलता है कि ये लोग ट्रेटर्स हैं, ये लोग गद्दार हैं, जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं ये लोग गद्दार हैं. लेकिन वो लोगों को फोर्स कर देता है, ये रियलाइज कराता है कि एक्चुअली में सीजर वॉज नॉट एम्बिशियस. इनफैक्ट दीज कॉन्स्पिरेटर्स वर एम्बिशियस. इन लोगों ने अपने पर्सनल जेलेसी की वजह से सीजर को मारा है. Here under the leave of Brutus and rest, for Brutus is an honorable man, so are they all honorable men, come I to speak in Caesar's funeral. So यहाँ पे मुझे परमिशन मिली है ब्रूटस से, वो एक बहुत ऑनरेबल मैन है. इनफैक्ट ऑल द कॉन्स्पिरेटर्स, ये जितने लोग हैं सब बहुत ऑनरेबल मैन है. इन्होंने मुझे परमिशन दी है, इसलिए मैं सीजर की फ्यूनरल में आया हूँ बोलने के लिए. बिकॉज याद है ब्रूटस ने बोला था कि तुम्हें ये बोलना पड़ेगा कि हमने परमिशन दी है तुम्हें यहाँ पे बोलने के लिए, वही वो बोल रहा है. ही वॉज माई फ्रेंड फेथफुल एंड जस्ट टू मी. भाई सीजर मेरा तो दोस्त था, मेरे लिए तो बड़ा फेथफुल था, मेरे लिए तो बड़ा लॉयल था. पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई इनको. बट ब्रूटस सेज ही वॉज एम्बिशियस एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन. सी ब्रूटस कैनॉट से एनीथिंग फॉल्स. वाई? बिकॉज ही इज एन ऑनरेबल मैन. तो ब्रूटस कह रहा है कि वो तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस था. पता नहीं यार, मेरा तो दोस्त था, मेरे लिए तो बड़ा अच्छा था यार. सो ही इज मेकिंग द पीपल रियलाइज कि वो सोचें कि ब्रूटस ने ऐसा बोला था लेकिन सीजर तो ऐसा था. ये डिस्क्रिपेंसी क्यों हो रही है? सो ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, लेकिन ब्रूटस तो झूठ बोल नहीं सकता है बिकॉज ही इज एन ऑनरेबल मैन. ही हैड बॉट होम मेनी कैप्टिव्स होम टू रोम whose ransoms did the general coffers fill. See, prisoners of war जो होते थे उनको लेके आता था सीजर, और
जो भी वॉर के प्रिजनर्स होते थे, जब वो आ जाते थे तो यहाँ से उनकी कंट्रीज़ में मैसेज भेजा जाता था कि भाई तुम्हारे ऐसे ऐसे फैमिली मेम्बर्स हमारे पास हैं, अगर उनको बचाना चाहते हो तो हमें इतना अमाउंट दो। तो जो पैसा आता था उसे जनरल ट्रेजरी भरती थी। तो वही वो बोल रहा है कि सीजर ने वॉर्स जीती, इतनी वॉर्स जीती, उसके लिए वो इतने सारे कैप्टिव्स लाता था, इतने सारे रोम्स में कैप्टिव्स लाता था, जिसकी वजह से जनरल ट्रेजरी भरती थी। वो अपना पर्सनल पैसा तो नहीं यूज़ करता था ना, वो तो रोम के बेनिफिट के लिए यूज़ करता था। डिड दिस इन सीजर सीम एम्बिशियस? इसमें सीजर एम्बिशियस था क्या? सीजर तो इसमें एम्बिशियस तो नहीं लग रहा है। When the poor have cried, Caesar hath wept. जब जब पुअर्स रोते थे, सीजर उनके साथ हमेशा रोया है। सीजर ने हमेशा उनको कंपैशन दिया है, हमेशा उनके साथ रहा है। Ambition should be made of external stuff. Ambition can't be made of such soft material. Ambitious person तो वो तो दूसरों को कुचल के आगे बढ़ता है। Ambitious person इतना soft hearted तो नहीं हो सकता है। Yet Brutus says he was ambitious and Brutus is an honorable man. लेकिन फिर भी Brutus कहता है वो ambitious था, लेकिन Brutus honorable man है, वो तो झूठ बोल नहीं सकता है। You all did see that on the Lupercal I did presented him a kingly crown. So यहाँ पे basically ये एक master stroke है। crown वाला जो point है ना, ये एक master stroke है। वो क्या बोल रहा है, आप लोग ने खुद देखा था कि feast of Lupercal में मैंने उसको एक kingly crown दिया था। ये biggest proof है that Caesar was not ambitious। ठीक है, which he did thrice refuse, 3 बार उसने refuse कर दिया था। Was this ambition? क्या इसको एम्बिशन कहते हैं? अरे भाई, जो बंदा एम्बिशियस होता है वो तो क्राउन तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा। वो तो 3 बार उसने क्राउन रिफ्यूज़ किया। अरे एक बार कोई करता है मुलहजे में, 2 बार करेगा, तीसरी बार तो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन सीजर ने 3 बार क्राउन को रिफ्यूज़ किया। Yet Brutus says he was ambitious and sure he's an honorable man. फिर भी ब्रूटस कहता है कि वो ambitious था। और ब्रूटस तो यार honorable man है। मतलब वो इनडायरेक्टली लोगों के दिमाग में ये कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है कि ये honorable man नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं। सीजर देखो, ब्रूटस ने कोई भी वैलिड रीजंस नहीं, बस उसने एक हवा में बोला था कि सीजर वॉज एम्बिशियस इसलिए हमने मार दिया, उसने कोई रीजंस नहीं दिए। एंटनी लोगों के दिलों में घुस रहा है, कैसे? एक एक रीज़न देके। भैया वो एम्बिशियस, ब्रूटस ने बोला वो एम्बिशियस है, ठीक है भाई, लेकिन वो तो ना कभी क्राउन एक्सेप्ट कर रहा है, पुअर पीपल के साथ रोता था। एम्बिशियस पीपल तो बहुत ज़्यादा हार्ड हार्टेड होते, तो वो हर चीज़ को जस्टिफाई कर रहा है। और लोगों ये चीज़ विटनेस भी कर चुके थे, हाँ भाई क्राउन तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया था, ये बात तो सच है। So Antony is actually letting people judge that whether Caesar was ambitious or not. वो खुद नहीं बोल रहा है, वो लोगों को जज करवा रहा है कि तुम लोग बताओ, तुम सोचो। I speak not to disapprove what Brutus spoke. I am not speaking in order to contradict what Brutus spoke. In fact वो इसीलिए बोल रहा था, contradict करने के लिए बोल रहा है। लेकिन वो लोगों को क्या बोल रहा है, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि जो ब्रूटस ने बोला है मैं उसको contradict करूँ। But here I am to speak what I do know. See, I am not speaking in order to contradict Brutus. मैं तो बस वही बोल रहा हूँ जो मुझे लगता है, जो मुझे पता है, मैं तो सिर्फ वही बोल रहा हूँ। You all did love him once, not without cause. There was a time जब आप सब लोग उसको प्यार करते थे और उसके पीछे कोई रीज़न नहीं था, आप लोग genuinely उससे प्यार करते थे। What cause withholds you then to mourn for him? Now what is the reason that you cannot even shed a tear for him? आप उसके लिए आंसू नहीं बहा सकते हैं। अब ऐसा कौन सा रीज़न है जो आपको स्टॉप कर रहा है कि आप उसके लिए मॉर्न करें, आप उसके लिए आंसू ना बहाएं? क्यों आप उसके लिए रो नहीं रहे? उसकी डेथ हो गई है, you should people cry for him. Now what is the reason which is stopping you to show your love to him? O judgment, thou art fled to brutish beast. So यहाँ पे judgment has been personified. So यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि oh my God, what is this? Human intelligence, ये जो human beings की intelligence है, it seems as if it has become the property of animals. ये animals की हो गई है. Humans are not able to use their intelligence. वो लोग अपना दिमाग नहीं use कर पा रहे हैं. They have lost the power of judgment. Humans are not able to judge properly. And men have lost their reasons. They have lost their reasoning capacity, thinking capacity. Humans are not able to judge properly. Bear with me. My heart is in the coffin there with Caesar.
and I must pause till it comes back to me. So basically, Antony is a very, very clever orator. What is he doing? He is giving a pause. उसने जितनी बातें की हैं वो टाइम दे रहा है कि लोग उस बातों पे सोच सकें, लोग उस बातों को ध्यान कर सकें कि ये बंदा तो सही कह रहा है, इसने तो ऐसा था, इतने तो ऐसा था, एंड ही कैन ऑल्सो गेट टाइम टू सी द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक. तो वो क्या बोल रहे हैं, अरे मेरा दिल तो उस कॉफिन में है, प्लीज़ एक मिनट रुको यार, वो दिल मेरा वापस आ जाए, बिकॉज मेरा दिल तो सीजर के साथ उसके कॉफिन में है. सो दिस इज अ वे इन ऑर्डर टू वेट एंड सी द रिएक्शन ऑफ द पब्लिक कि लोग क्या उसके बारे में कहते हैं. सेकेंड सिटीजन, methinks there is much reason in his saying. See, now we can say that Antony is successful in convincing people. लोग जो हैं वो बात कह रहे हैं, हाँ यार बात तो ये सही कह रहा है, इसकी बात में तो दम है, रीज़न है. Second citizen, if thou consider rightly of the matter, Caesar has had great wrong. अगर तुम देखो बात उसकी बातों को ध्यान से कंसिडर करो तो Caesar has been greatly wronged. बहुत ही गलत हुआ है सीजर के साथ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था. Third citizen, has he masters? I fear there will be a worse come in his place. Oh my God, he has my friend. उसके साथ गलत हुआ है और मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं उससे भी ज़्यादा बुरा इंसान हमारा रूलर ना बन के आ जाए, मुझे तो डर लग रहा है. Fourth citizen, marked ye his words, he would not take the crown. So this was the master stroke. Crown. अरे यार वर्ड्स मार्क किए, अगर सीजर एम्बिशियस था तो वो डेफिनेटली क्राउन एक्सेप्ट कर लेता, उसने क्राउन नहीं एक्सेप्ट किया, उसके वर्ड्स ध्यान दिए. Therefore it is certain he was not ambitious. ये तो फर्स्ट श्योर हो गया है कि जो ब्रूटस ने बोला था कि सीजर वॉज एम्बिशियस, ये तो फर्स्ट श्योर हो गया है कि सीजर वॉज नॉट एम्बिशियस. इन लोगों ने झूठ बोला है. फर्स्ट सिटीजन, if it be found so, some will dear abide it, some will have to pay dearly. अगर ऐसा सच प्रूव हो गया तो कुछ लोगों को तो बहुत ज़्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा, कुछ लोगों को dearly पे करना, heavily पे करना पड़ेगा. Second citizen, poor soul, his eyes are red as fire with weeping, so they are now showing sympathy for Antony. अभी थोड़ी देर पहले याद है कैसे लोग कह रहे थे एंटनी ने कुछ ब्रूटस के अगेंस्ट तो नहीं बोला, अच्छा है वो ब्रूटस के अगेंस्ट नहीं बोल रहा. नाउ we can say that the citizens are fickle minded. कितने easily एंटनी की बातों में आ गए, पहले ब्रूटस की बातों में थे, सेम पर्सन अब एंटनी की बातों में आ गए, कितने easily इसकी बातों में कन्विंस हो गए. Antony, fourth citizen. Now mark him. He begins to speak again. So we can say that Antony is a better orator than Brutus. He is able to convince people. वो ब्रूटस ने बहुत सुपरफिशियल कन्विंस किया था, एंटनी डीप उतर के लोगों को कन्विंस कर रहा है ताकि नो लुकिंग बैक हो. इतना स्ट्रॉन्ग कन्विंसिंग पावर है उसका. और शायद हम कह सकते हैं कैसियस वॉज एब्सोल्युटली राइट. वो बार बार मना कर रहा था ब्रूटस मत इसको परमिशन दो, तुम जान नहीं रहे हो उसके पास बहुत पावर है, वो कन्विंस कर सकता है, लेकिन बार बार ब्रूटस ने कैशियस की बातों को अवॉइड किया. अरे ही इज़ अ गेमसम पर्सन, वो क्या कर पाएगा, मैं आगे जाऊँगा, मैं बोलूँगा. So now Antony, but yesterday the word of Caesar might have stood against the word. Now lies he there. Only yesterday, अभी हाल ही की बात है, कल ही की बात है. द वर्ड ऑफ सीजर, सीजर के एक एक वर्ड माइट हैव कंट्रोल द वर्ल्ड. ही वॉज सो पावरफुल. आज देखो कैसे वो बेचारा नीचे पड़ा हुआ है, आज उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, ख़त्म हो गया सब कुछ. And none so poor to do him reverence, and none is so humble to show him respect. और तुम लोग के अंदर इतनी ह्यूमैनिटी नहीं है कि उसको रिस्पेक्ट पे करो. कल तक वो इतना पावरफुल था कि उसकी वर्ड्स कंट्रोल करते थे पूरे वर्ल्ड को, एंड नाउ तुम लोग में इतनी ह्यूमैनिटी नहीं है कि उसको रिस्पेक्ट शो कर सको. ओ मास्टर्स, if I were disposed to stir your hearts and minds to mutiny and rage, I should do Brutus wrong and Cassius wrong, who you all know are honorable men. तो देखो वो यहाँ पे बोल क्या रहा है, वो बोल वही रहा है जो वो चाहता है, लेकिन क्या कह रहा है, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए. इफ़ आई वर टू इंसाइट यू, अगर मैं तुमको भड़काता हूँ कि तुम लोग रेबिलियन करो, तुम लोग म्यूटनी करो, तो मैं ब्रूटस के साथ गलत करूँगा, तो मैं कैसियस के साथ गलत करूँगा, और वो लोग तो ऑनरेबल मैन है, तो मैं उनके साथ ये सब करना नहीं चाहता हूँ. देखो वो करना यही चाहता है, वो भड़काना चाहता है, वो भड़का रहा है. वो कह रहा है कि देखो भाई मैं भड़काना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने भड़काया तो फिर मैं ऑनरेबल मैन के साथ बुरा करूँगा. I will not do them wrong.
आई रादर चूज टू रॉन्ग द डेड टू रॉन्ग माई सेल्फ एंड यू। देखो, मैं उन लोगों को, उन ऑनरेबल मैन को कभी गलत नहीं कहूँगा। भले ही मैं डेड को गलत कह दूँ, मैं खुद को गलत कह दूँ, अरे आप लोग भी मैं कह दूँगा गलत हो, लेकिन वो तो ऑनरेबल मैन है, वो कभी गलत नहीं हो सकते ना। सिटीजन्स के दिमाग में ये चीज़ आ गई है, हम लोग तो गलत है नहीं, ये बंदा भी सही बोल रहा है, मतलब वो ऑनरेबल मैन ही गलत हैं। टू रॉन्ग द डेड, then I will wrong such honorable men. I would rather prefer to wrong myself. I would rather prefer to wrong the dead, you people, but not honorable men. But here is a parchment document with the seal of Caesar. See, public was not very educated. So यहाँ पे वो एक मास्टर स्ट्रोक खेलता है। ये जो विल दिखाता है वो यहाँ पे दिखा रहा है विद द सील ऑफ सीजर। देयर इज अ पार्चमेंट, पार्चमेंट मतलब डॉक्यूमेंट, वो एक डॉक्यूमेंट दिखाता है। हम मान सकते हैं कि ये कोई भी डॉक्यूमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि ये सीज़र की सील हो, सीज़र की विल हो, क्योंकि अभी उसको ये मौका ही नहीं मिला है कि वो सीज़र के घर जाए, वहाँ से ये विल लाए। तो उसने, क्योंकि वहाँ पे लोग हैं, उन लोग को कन्विंस करना है, तो कोई भी पेपर ला के वो बोल सकता है कि देखो ये एक डॉक्यूमेंट है, ये एक सीज़र के थ्रू डॉक्यूमेंट है, उस पर सील है, सीज़र की स्टैम्प है, जिससे साइन करते हैं ना, तो वो विल है एक सीज़र का। आई फाउंड इट इन हिज क्लॉसेट, मुझे उसकी ये एल्मेरा में मिला। इट इज़ हिज विल, ये उसकी विल है। विच पार्डन मी, आई डू नॉट मीन टू रीड, लेकिन मैं वो पढ़ूंगा नहीं, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं इस विल को रीड करूं। As they would go and kiss the dead Caesar's wound and dip their napkin in his sacred blood and beg a hair of him for memory and dying mention it within their wills, bequeathing it as a rich legacy onto their issues. See, मैं क्यों नहीं रीड करूँगा? क्योंकि आप लोग जो हैं, अगर मैंने ये रीड किया तो आप लोग इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाएंगे, इतना ज़्यादा उससे प्रभावित हो जाएंगे कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जाएंगे और अपना हैंकरचीफ उसके सेक्रेड ब्लड में डिप करेंगे। मतलब यू विल फील सो ओवरवेल्म कि हे भगवान, सीजर इतना अच्छा इंसान था। आप उसके एक हेयर बेग करेंगे टू कीप एज अ मेमोरी, एक हेयर बेग करेंगे कि प्लीज़ मुझे हेयर दे दो, ताकि वो उसको हम मेमोरी की तरह रख सकें व्हेन दे डाइड। और आप अपने मेंशन करेंगे अपने विल्स में, जब आप मर जाएं तो आपके बच्चों जैसे होता नहीं है फैमिलीज़ में, कुछ भी एक मोमेंटो हो या कोई लैंड हो, तो वो एक फैमिली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास ऑन होती है। ऐसे ही सीज़र की हेयर आपके लिए इतनी बड़ी बात हो जाएगी कि आप उसको अपनी विल्स में मेंशन करेंगे कि ये सीज़र का हेयर है। अगर मैंने ये विल पढ़ दी, आप लोग को तब समझ में आएगा कि कितना ज़्यादा जेनरस सीज़र था। एंड इट विल बी लाइक अ प्राइजलेस इनहेरिटेंस आपके लिए। आप अपने बच्चों को, वो अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे on to their issues. So basically he is tempting, वो लालच दे रहा है, यहाँ पे पब्लिक को लालच दे रहा है और वो क्यूरियस कर रहा है। वो कह रहा है मैं बताऊंगा नहीं इसमें क्या लिखा है, लेकिन अगर मैंने बता दिया तो आप लोग पागल हो जाएंगे, आप लोग ये सब करेंगे। तो जाहिर सी बात है लोग जो हैं वो क्रेजी हो जाते हैं। वो लोग पूछते हैं वी विल हियर द विल, रीड इट मार्क एंटनी। नहीं नहीं, हम पढ़ें, हम सुनेंगे विल, आप रीड करिए मार्क एंटनी। सिटीजन्स, द विल, वी विल हियर द सीजर्स विल। नहीं, हमें सुनना है, हमें सीजर की विल सुनना है। एंटनी, हैव पेशेंस जेंटल फ्रेंड्स, आई मस्ट नॉट रीड इट। नहीं, पेशेंस रखिए, ये सही नहीं होगा कि मैं ये विल रीड करूँ। इट इज़ नॉट मीट मतलब प्रॉपर। यू नो हाउ सीजर लव्ड यू। देखो, इट इज़ नॉट गुड दैट यू शुड नो सीजर आपसे कितना प्यार करता था। ये सही नहीं होगा अगर आप लोग को पता चल जाए सीजर आपसे कितना प्यार करता था। यू आर नॉट वुड्स, यू आर नॉट स्टोन्स, बट मीन्स कोई लकड़ी थोड़ी ना हो, कोई स्टोन थोड़ी ना हो, तुम ह्यूमन ही तो हो। तुम्हारा दिल कितना ज़्यादा अफेक्ट हो जाएगा अगर तुम्हें पता चलेगा कि सीजर तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करता था। इट विल इन्फ्लेम यू, इट विल मेक यू मैड, इट विल इन्फ्लेम यू विद पैशन। भर जाओगे तुम लोग पैशन से, यू विल गो क्रेजी व्हेन यू विल कम टू नो कि सीजर आप लोग से कितना ज़्यादा प्यार करता था। इट इज़ गुड यू नो नॉट दैट यू आर हिज हेयर मतलब सक्सेसर। अच्छा है तुम लोग को नहीं पता है कि तुम लोग उसके सक्सेसर हो। देखो बता भी रहा है, और क्या कह रहा है, भगवान अच्छा है आप लोग को पता ही नहीं है कि आप ही उसके सक्सेसर हो। फॉर इफ़ यू शुड, ओ वॉट वुड कम ऑफ इट। अच्छा है आपको नहीं पता है, अगर पता होता तो भगवान जाने कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती। देखो इसने बता भी दिया कि आप लोग सक्सेसर हो, और हल्का सा चिंगारी छोड़ दी और फिर शांत हो गया। Fourth citizen,
Read the will. We'll hear it, Mark Antony. You shall read us the will. Caesar's will. So they are forcing him. वो फोर्स कर रहे हैं, नहीं विल पढ़ो, हमें सुनना है, विल पढ़ो, तुम फिर पढ़ो विल. एंटनी, विल यू बी पेशेंट? सो तुम लोग पेशेंटली सुनोगे. विल यू स्टे अ वाइल? तो थोड़ी देर और रुकना पड़ेगा. सुनोगे, रुकोगे. आई हैव ओवरशॉट माई सेल्फ टू टेल यू ऑफ इट. आई हैव गॉन अ लिमिट बियॉन्ड. जो मेरी लिमिट्स थी मैं उससे एक लिमिट आगे चला गया हूँ, जो मैंने आपको ये सब बता दिया है. आई फियर, आई रॉन्ग द ऑनरेबल मैन whose daggers have stabbed Caesar. I do fear it. So they are actually reminding the horrible work done by these honorable men. यहाँ पे एंटनी इज अगेन रिमाइंडिंग कि यार अगर मैंने विल पढ़ दी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उन ऑनरेबल मैन के साथ कितना गलत करूँगा. हे भगवान, नहीं उन्होंने तो सीजर को मारा है, मैं उनके साथ गलत कर दूंगा अगर मैंने सीजर की विल पढ़ दी. फोर्थ सिटीजन, दे वर ट्रेटर्स. ऑनरेबल मैन, देखो नाउ Antony is successful. He is an excellent orator. उसका जो मकसद था to make people realize that they were the traitors and they are not honorable men, and he is successful in it. कितने खुशी खुशी वो बताता है. उसने अपने मुंह से देखो कहीं पे भी नहीं बोला है कि वो ट्रेटर्स हैं. अब now people are saying कि वो लोग तो गद्दार हैं, वो ट्रेटर्स हैं, they are not honorable men. Citizen, the will, the testament, नहीं will पढ़ो, read करो, document. Second citizen, they were villains, murderers. The will, read the will. अब देखो पहले तो उसने प्रूफ दिया, फिर उसने एक ये भी लालच डाल दी कि विल है, यू पीपल आर सक्सेसर्स. तो लोग उसके पीछे क्रेजी हो गए हैं. अब तो सीजर उनके लिए भगवान है, तो अब वो पीछे पड़े हैं. रीड द विल, रीड द विल. एंटनी, you will compel me then to read the will. So are you compelling me? Are you forcing me कि मैं will read करूँ? Okay. Then make a ring about the corpse of Caesar. तो एक काम करो, डेड बॉडी के अराउंड, सीजर की डेड बॉडी के अराउंड एक सर्कल बना लो. And let me show you him that made the will. और मैं सीजर की डेड बॉडी दिखाता हूँ जिसने एक्चुअली में ये will बनाई है. अब वो लोगों को अभी तक तो उसने लॉजिक से किया है, अब वो इमोशनल कर रहा है. वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि किसी भी हाल में लोग बाद में कन्विंस ना हो सके. लास्ट लिमिट तक वो कन्विंस करके लोगों को यहाँ से भेजना चाह रहे हैं. तो वही वो कह रहा है, लेट मी शो यू हिम दैट मेड द विल. अच्छा एक काम करो, सीजर के राउंड खड़े हो जाओ. आई विल शो यू उस पर्सन को जिसने ये विल बनाई है. शैल आई डिसेंड एंड विल यू गिव मी लीव? सो ही इज जस्ट बीइंग वेरी हम्बल. मैं नीचे आ जाऊँ, आप मुझे परमिशन देते हैं. देखो वो बहुत हाई लेवल पे, वो बहुत अच्छी पोजीशन पे, इन स्पाइट ऑफ दैट वो लोगों से परमिशन ले रहा है. आर यू गिविंग मी परमिशन? मैं नीचे आ जाऊँ प्लीज, मैं नीचे आ जाऊँ. Citizens, come down. Second citizen, descend. Third citizen, you shall have leave. Yes, you have the permission. Please come down, come down. वो नीचे बुलाते हैं. Antony comes down. Antony नीचे आता है. Fourth citizen, ring, stand around. So fourth citizen कहता है ring बनाओ और सब लोग गोले में खड़े हो जाओ around the corpse. First citizen, stand from the harass, stand from the body. थोड़ा सा कॉफिन से दूर रहो, डेड बॉडी से थोड़ा सा दूर रहो, डिस्टेंस बनाओ. सेकेंड सिटीजन, रोम फॉर एंटनी, मोस्ट नोबल एंटनी, मेक सम स्पेस फॉर एंटनी, मोस्ट नोबल एंटनी के लिए थोड़ी सी स्पेस बनाओ. एंटनी, नहीं, प्रेस नॉट सो अपॉन मी, स्टैंड फार ऑफ. प्लीज़ इतना क्लोज मत आओ, थोड़ा सा डिस्टेंस रहो, सब लोग डिस्टेंस पे रहो. सिटीजन, स्टैंड बैक. रूम, बियर बैक, प्लीज़ कीप बैक, थोड़ा सा स्पेस दो, थोड़ा सा स्पेस दो, सब लोग थोड़ा डिस्टेंस बनाओ. So, this speech is a very, very powerful and a very authentic speech. Antony, if you have tears, prepare to shed them now. If you have tears, अगर आँखों में आंसू हैं, हल्का सा भी इमोशनल हो, तो अब स्टार्ट करो शेड करने के लिए, क्योंकि जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इतना इमोशनल है कि you will not be able to hold back your tears. आप लोग अपने आंसू नहीं रोक पाओगे. You all do know this mantle. Mantle मतलब क्लोक. तो देखो, सीजर जो समय क्लोक पहना हुआ था वो उसको उठा के दिखाता है. अभी वो सीजर की बॉडी नहीं दिखा रहा है, वो सिंपली क्लोक उठा के दिखा रहा है. आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम एवर सीजर पुट इट ऑन. आई रिमेंबर जब सीजर ने पहली बार ये क्लोक पहना था. इट वॉज अ समर इवनिंग इन हिज टेंट. दैट डे ओवरकम द निर्वाय. सो निर्वाय एक ट्राइबल पीपल है, एक ट्राइब है. तो फर्स्ट टाइम जब सीजर ने निर्वाय ट्राइब को हराया था तो इवनिंग में उसने ये वाला क्लोक पहना हुआ था. Look, in this place ran Cassius dagger through. See, पूरा ये
इमेजिनरी सीन वो डिपिक्ट करा है, बिकॉज एंटनी वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ सीजर्स असैसिनेशन. जब सीजर को मारा गया था तो एंटनी वहाँ पे नहीं था. अब वो बोल रहे देखो ये क्लोक, देखो यहाँ वाला छेद, देखो यहाँ पे कैसियस ने मारा था, यहाँ पे देखो यहाँ पे ब्रूटस ने मारा था, जबकि उसको पता ही नहीं है कौन सा स्टैब किसने किया है, कहाँ पे किस स्टैब का किसकी वजह से जो वो छेद हुआ है, वो होल हुआ है, वो नहीं पता है. वो सिर्फ इमेजिन कर रहा है. वो इसलिए कर रहा है ताकि वो लोगों के इमोशंस के साथ खेल सके. इमोशनली वो उनको इंसाइट करना चाहता है, भड़काना चाहता है. तो वो क्या बोल रहा है, लुक इन दिस प्लेस रैन कैशियस डैगर थ्रू. देखो इस प्लेस पे कैशियस ने अपना डैगर मारा था, पियर्स किया था इस जगह पे. सी वाटर रेंट द एनवियस कैस्का मेड. सी वॉट रेंट का मतलब होता है टीयर. वाटर टीयर द एनवियस द जेलस कैस्का मेड. देखो कैसे जेलस कैस्का ने यहाँ पे किया है, मारा है. थ्रू दिस द वेल बिलवेड ब्रूटस स्टैब्ड, and as he plucked his cursed steel away, mark how the blood of Caesar followed it, as rushing out of doors to be dissolved if Brutus so unkindly knocked on. So देखो यहाँ पे कितना इमोशनल उसने खेला. क्या बोल रहा है, देखो जितनी बार जितने लोगों ने स्टैब किया होगा सबके साथ खून तो बाहर ही आया होगा, लेकिन वो कैसे खेल रहा है, वो कह रहा है कि जब ब्रूटस ने स्टैब किया अपने डैगर से और बाहर निकाला डैगर, तो जो सीजर का ब्लड है वो बिलीव नहीं कर पाया कि अरे ब्रूटस मुझे मार सकता है. तो वो बाहर निकल के आया इन ऑर्डर टू चेक कि सच में क्या ब्रूटस ने मुझे मारा है, ऐसा कैसे हो सकता है. सो एवरीथिंग हियर इज इमेजिनरी. एंटनी वॉज नॉट प्रेजेंट इन ऑर्डर टू कन्फर्म कि कौन सा कट किसने मारा है. For Brutus, as you know, was Caesar's angel. So he is emotionally blackmailing people. आप लोगों को तो पता ही है कि ब्रूटस तो सीजर का एंजल था और उसने ब्रूटस ने सीजर को मार दिया. जज ओ यू गॉड्स हाउ डियरली सीजर लव्ड हिम. नाउ गॉड आप ही जज करो सीजर उसे कितना प्यार करता था. दिस वॉज द मोस्ट अनकाइंडेस्ट कट ऑफ ऑल. ये सबसे ज़्यादा हार्ड लाइक हर्टफुल कट था. क्यों, क्योंकि इसमें इनग्रैटिट्यूड था. ब्रूटस, देखो कोई अगर किसी से नफरत करता हो स्टैब कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं है. आप फ्रेंड बन के किसी को स्टैब करो वो सबसे ज़्यादा बुरी चीज़ है. आपने धोखा दिया है, तो ये सबसे ज़्यादा अनकाइंडेस्ट कट था. फॉर वेन द नोबल ब्रूटस सॉ हिम स्टैब, ingratitude more strong than traitor's arm quite vanquished him. vanquished मतलब defeated him. कितना अच्छे वर्ड्स वो यूज़ कर रहा है. वो कह रहा है कि when actually Caesar saw Brutus stabbing him, जब सीजर ने देखा कि ब्रूटस उसको स्टैब कर रहा है, तो जो डैगर्स ऑफ ट्रेटर्स हैं, जो गद्दारों ने उसको मारे थे खंजर, वो इतना पेनफुल नहीं था, बल्कि इनग्रैटिट्यूड ऑफ ब्रूटस ज़्यादा पेनफुल था. और एज अ रिजल्ट सीजर का ब्रेव हार्ट ब्रेक कर जाता है. वो ये झेल नहीं पाता है कि चलो गद्दारों ने तो मुझे मारा, चलो मार लिया, कोई बात नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने, ब्रूटस ने, जिस पे मैं इतना ट्रस्ट करता था, उसने भी मुझे स्टैब कर दिया. देन burst his mighty heart, and in his mantle, muffling up his face, even at the base of Pompey's statue, which all the while ran blood, great Caesar fell. So he was so disheartened. वो ब्रूटस के स्टैब से इतना ज़्यादा डिसहार्टेंड हो गया था कि उसने अपना फेस रैप कर लिया, उसने अपना मैंटल अराउंड हिज फेस रैप किया, और पॉम्पे के स्टैचू के नीचे, इमेजिन उसने पॉम्पे को डिफीट किया था, उस फिर भी उसी के स्टैचू के नीचे वहाँ पे गिर गया, उसका ब्लड फ्लो करता रहा और सीजर गिर गया. ही एक्चुअली डाइड. इट वॉज अ ग्रेट फॉल. ये कितना बड़ा फॉल था हमारे कंट्रीमैन, ये हम लोग के लिए कितना बड़ा फॉल था. सो oh what a fall was there my countrymen. So it was not actually a fall of Caesar, but it was also a defeat for all of us. हम सबका ये फॉल था, ये बहुत बड़ा हमारे लिए फॉल था. Then I and you and all of us fell down. White's bloody treason flourished over us. It was actually not a fall for Caesar, it was a fall for you, it was a fall for me. और गद्दार हमसे जीत गए, हमारे ऊपर गद्दारों ने विक्ट्री पा ली. So it was not only a fall for Caesar, whereas it was a fall for all of us.
Oh, now you weep, and I perceive you feel the dint of pity. Oh, I can see you people are crying. तुम्हें अब मैं देख सकता हूँ तुम सब लोग रो रहे हो. Now I can feel that you people are feeling sympathetic towards Caesar. अब मुझे लग रहा है कि चलो तुम्हारे अंदर भी कुछ sympathy आ तो रही है Caesar के लिए. These are gracious drops. These are kind tears. ये तो gracious है, kind tears है. Kind souls. What? Weep you when you but behold are Caesar's vessels wounded? तुमने तो बस उसके garments wounded देखे हैं, तब तुम्हें रोना आ रहा है. तुम लोग उसकी body देखोगे. Look you here. Here is himself marred as you with traitors. अभी तो तुम सिर्फ उसका मैंटल देख के इतना इमोशनल हो रहे हो. देखो देखो ये उसकी बॉडी. एंड ही ओपन्स द बॉडी और वो दिखाता है, अनकवर कर देता है सीजर की बॉडी और वो दिखाता है. लुक हियर, हियर इज सीजर हिमसेल्फ. ये सीजर है हुज मार्ड. मार्ड मतलब स्पॉइल्ड, पूरा डिस्ट्रॉयड बाय ट्रेटर्स. कैसे उसको गद्दारों ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया. देखो उसकी बॉडी को. फर्स्ट सिटीजन, ओ अ पिटियस स्पेक्टिकल. ओ माई गॉड, दिस इज अ वेरी पिटिफुल साइट. ये तो बहुत भयानक है. सेकेंड सिटीजन, ओ नोबल सीजर. देखो, फ्रॉम टायरेंट टू नोबल. अभी तक उसको लोग क्या बोल रहे थे? ही वॉज अ टायरेंट मैन. नाउ दे आर कॉलिंग हिम नोबल. सो फ्रॉम टायरेंट टू नोबल. सो एंटनी इज सक्सेसफुल इन टर्निंग द टेबल्स अगेंस्ट कॉन्स्पिरेटर्स. कितनी ईजिली उसने पूरी खेली अलग कर दिया है. थर्ड सिटीजन, ओ वोफुल डे. ओ इट्स अ वेरी सैड डे. फोर्थ सिटीजन, ओ ट्रेटर्स, विलेन्स. सो नाउ the conspirators are traitors, they are villains. First citizen, oh bloody sight. Second citizen, we will be revenged, we will take revenge for this. Citizen, revenge, about, seek, burn, fire, kill, slay, let not a traitor live. So Antony is successful in his mission. He wanted the side of these public. सो एंटनी इज सक्सेसफुल. वो इन लोगों का साथ चाह रहा था. वो लोगों का साथ चाह रहा था क्योंकि वो अकेला था और उसको वो साथ मिल गया. एंटनी, स्टे कंट्रीमैन. फर्स्ट सिटीजन, पीस हियर. हियर द नोबल एंटनी. शांत हो जाओ, शांत हो जाओ. अभी कुछ बोल रहे हैं नोबल एंटनी. क्या बोल रहे हैं अब देखिए. सेकेंड सिटीजन, वी विल हियर हिम, we will follow him, we will die with him. So we can again say that how people are fickle minded. कैसे एंटनी के अगेंस्ट थे और अब उसके लिए चल रहे हैं, उसके लिए मरने को तैयार हैं. एंटनी, गुड फ्रेंड्स, स्वीट फ्रेंड्स, let me not stir you up to such a sudden flood of mutiny. So I do not want to incite you suddenly. एकदम से तुम लोग देखो, कोई भी चीज़ कहते नहीं है एकदम से शुरुआत होता है तो तुरंत नीचे आ जाता है. एकदम से मत शुरुआत करो, शांत रहो, पहले पूरा रीज़न सुनो. They that have done this deed are honorable. जिन लोगों ने ये काम किया है, they are very honorable people. What private griefs they have, alas, I know not. पता नहीं क्या उनकी पर्सनल राइवलरी थी सीजर से. अब देखो उसने ये चीज़ भी डाल दी है लोगों के दिमाग में कि सीजर वॉज नॉट एम्बिशियस. उन लोग की खुद की कोई पर्सनल जेलेसी थी जिसकी वजह से उन्होंने सीजर को मारा. What private griefs they have, alas, I know not. पता नहीं कौन से ऐसा पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से उन्होंने सीजर को मारा. That they made them do it. They are wise and honorable. वो लोग तो बहुत wise हैं, वो लोग तो बहुत honorable हैं. And will no doubt with reason answer you. तो ये कोई मौका नहीं दे रहा है कि किसी भी तरह से जो ट्रेटर्स हैं वो इन लोग को कन्विंस कर पाएँ दोबारा. तो वो क्या कह रहा है, देखो भाई, आप उनके पास जाएंगे, आप उनसे बोलेंगे तो वो कोई ना कोई रीज़न दे के आपको फिर से कन्विंस कर लेंगे. I come not friends to steal away your heart. I am no orator as Brutus is. So he is again pretending that वो बहुत सिंपल है. अरे देखिए, मैं आपका दिल चुराने नहीं आया हूँ. ब्रूटस तो इतना अच्छा ओरेटर है यार, मैं उतना अच्छा ओरेटर थोड़ी ना हूँ, मैं इतना अच्छा स्पीकर नहीं हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी नहीं है जो कि ब्रूटस के अंदर है. But as you know me all, I am a plain blunt man. I am a simple man. मेरे अंदर तो वो क्वालिटीज़ ही नहीं है. He is just pretending to be very humble, right? That love my friend. मैं तो बस अपने फ्रेंड से प्यार करता था, सब सच्चाई आपके सामने बोलने आया हूँ. And that they all know full well that gave me public leave to speak of him. उस पर भी खेल गया. उन लोगों को तो पता था कि मैं आप लोग को कुछ बोल ही नहीं पाऊंगा, मैं कन्विंस ही नहीं कर पाऊंगा, इसीलिए तो मुझे परमिशन दी है आप लोग के सामने बोलने के लिए. अगर उनको लगता कि मैं आप लोग को इंसाइट कर सकता, म्यूटनी के लिए भड़का सकता, तो कभी मुझे परमिशन ही नहीं देते. For I have neither wit nor words nor worth, because I have neither intelligence nor power of words nor vocabulary. मेरे पास तो कुछ नहीं है. Action
nor utterance, nor the power of speech, to stir men's blood, to prove people, to incite people. लोगों का दिल को कैप्चर करने के लिए ना, मैं इतना सिंपल इंसान हूँ, मेरे पास तो वो ना वोकेबलरी है ना मेरे पास अच्छे वर्ड्स हैं, मैं आप लोग के दिल को कैसे कैप्चर कर सकता हूँ, क्योंकि मैं तो इतना अच्छा ऑरेटर हूँ ही नहीं. आई ओनली स्पीक राइट ऑन ना, मैं तो बस साफ साफ सीधा सीधा सही सही बात करने वाला पर्सन हूँ. आई टेल यू दैट विच यू योर सेल्व्स डू नो, मैं तो बस सिंपल वही चीज़ बता रहा हूँ जो आप लोग को खुद पता है, मैंने कोई नई बात थोड़ी ना बताई है. शो यू स्वीट सीजर्स वूंड, पुअर पुअर डम माउथ, फिर से वो इमोशनल कर रहा है. आई कैन सिंपली शो यू द सीजर्स डम माउथ एंड एक्सपेक्ट देम टू स्पीक फॉर मी, मैं सिर्फ यही कर सकता हूँ, मेरे पास तो पावर नहीं है. बट were I Brutus and Brutus Antony, there were an Antony would ruffle up your spirits, put a tongue in every wound of Caesar that should move the stones of Rome to rise and mutiny. So indirectly he is telling each and every person to rise and revolt. वो क्या कह रहा है कि अगर मैं ब्रूटस होता और ब्रूटस एंटनी होता तो ब्रूटस के पास इतनी पावरफुल स्पीचेस हैं कि वो हर बंदे को कन्विंस करता कि उठो, राइज करो और उन गद्दारों से बदला लो. लेकिन मैं क्या करूं, मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे पास तो वो ना पावर्स ऑफ स्पीच है ना वर्ड्स हैं, मैं इतना अच्छा ओरेटर हूँ ही नहीं. लेकिन अगर ब्रूटस मेरी जगह होता तो आप लोग को बहुत अच्छे से कन्विंस कर जा सकता था कि उन गद्दारों से बदला लो. सिटीजन्स वी विल म्यूटनी, ही सक्सेसफुल, हम लोग बदला लेंगे, हम लोग म्यूटनी करेंगे. फर्स्ट सिटीजन, वी विल बर्न द हाउस ऑफ ब्रूटस. आयरनी, देखिए हम ब्रूटस का घर जला देंगे. अभी थोड़ी देर पहले ब्रूटस को ये लोग सब ब्रूटस को नाम लेके उसके घर तक पहुंचाने की बातें कर रहे थे. थर्ड सिटीजन, अवे देन, कम सीक द कॉन्स्पिरेटर्स, चलो चलो अब चलो कॉन्स्पिरेटर्स को ढूंढते हैं. सिटीजन एंटनी, हियर मी येट कंट्रीमैन, हियर मी स्पीक, अरे सुनो सुनो अभी पूरी बात तो सुनो, अभी टाइम बचा है. सिटीजन, पीस सो हियर एंटनी, मोस्ट नोबल एंटनी, यस यस सुनाइए मोस्ट नोबल एंटनी. एंटनी, why friends, you go to do you know not what, here wherein hath Caesar thus deserved your love. So he is putting such kind of a fuel कि कोई stop ना हो, किसी तरह से वो कन्विंस ना हो. देखो अब वो क्या कर रहा है, वो लोगों को कन्विंस कर रहा है कि क्यों सीजर आपका लव डिजर्व करता था, किस तरह से सीजर आपका लव डिजर्व करता था. आप जो करने जा रहे हो आपको तो पता ही नहीं है आप क्यों कर रहे हो. सीजर किस तरह से आपका लव डिजर्व करता था, क्यों आप सीजर के लिए लड़ रहे हो. सुनो तो, अलास यू नो नॉट, आई मस्ट टेल यू देन, यू हैव फॉरगॉट द विल आई टोल्ड यू ऑफ. अरे आप लोग वो विल तो भूल ही गए जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था. सिटीजन, मोस्ट ट्रू, द विल, लेट अस स्टे एंड हियर द विल. हाँ हाँ विल हम लोग तो भूल ही गए, विल तो सुनना ही है. एंटनी, हियर इज द विल अंडर सीजर्स सील. To every Roman citizens he gives, to every several man, 75 drachmas. See, again, the will may be real or may not be real. No one knows. वो क्या बोल रहा है, हर बंदे को 75 सिल्वर कॉइन सीजर ने अपनी विल में लिखा है. अब देखो भाई, लोगों के सामने तो ये कन्विंस हो गया ना, सीजर वॉज नॉट एम्बिशियस. सीजर ने हर बंदे के लिए इतना कुछ लिख के गया है. और सीजर के पास तो कोई बच्चा भी नहीं था, हम लोग ने एक्ट 1 सीन 1 में पढ़ा हुआ है, एक्ट 1 सीन 2 में. तो उसका मतलब यह है कि सबको उसने कंसिडर किया एज हिज ओन चाइल्ड. सेकेंड सिटीजन, मोस्ट नोबल सीजर, वी विल रिवेंज हिज डेथ. अरे बहुत बुरा हुआ, अब तो पक्का उसके डेथ के लिए बदला लेना है. थर्ड सिटीजन, ओ रॉयल सीजर एंटनी, हियर मी विद पेशेंस. अभी पूरा सुनो, पेशेंटली सुनो. पीसो सिटीजन्स बोलते हैं. एंटनी, मोर ओवर ही हैड लेफ्ट यू ऑल हिज वॉक्स. उसने अपने प्राइवेट रोड्स सब आप लोग के लिए छोड़े हैं. हिज प्राइवेट आर्बर्स, अपने ग्रूव्स, अपने जो ट्रीज के ग्रूव्स हैं वो छोड़ा है. आर्बर्स का मतलब होता है ग्रूव्स, जो गार्डन्स होते हैं उसको बोलते हैं. न्यूली प्लांटेड ऑर्चर्ड्स, ऑर्चर्ड्स वो जो फ्रूट्स के बगीचे होते हैं, तो न्यूली प्लांटेड ऑर्चर्ड्स छोड़ा है. ऑन दिस साइड ऑफ टाइबर, ऑन दिस पार्ट ऑफ द टाइबर, जितना भी है वो सब कुछ आप लोग के लिए छोड़ के गया है. ही हैड लेफ्ट देम यू एंड योर हेयर्स फॉर एवर. आपके और आपके बच्चों के लिए हमेशा के लिए वो आज छोड़ के गया है. कॉमन प्लेजर्स टू वॉक अब्रॉड, कॉमन प्लेजर ग्राउंड, ताकि आप लोग इजीली वॉक करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने आप को रिफ्रेश कर सकें. एंड रिक्रिएट योरसेल्फ, रिफ्रेश योरसेल्फ. हियर वाज अ सीजर, व्हेन कम्स अनदर सच अनदर. और बताओ भाई ऐसा सीजर कब आएगा, ये था सीजर.
अपना सब कुछ, अपने लिए कुछ नहीं रखा है, सब कुछ आप लोग में बांट के गया है. First citizen, never, never come away, away. We'll burn his body in the holy place, and with the brands, the fire, the traitor's house. Take upon the body, never. ऐसा सीजर तो कभी नहीं आएगा. एंड हम लोग चलो उसकी बॉडी को पहले होली प्लेस में, होली टेम्पल में बर्न कर देते हैं, एंड देन with those burning logs, we'll take those logs and we'll burn the house of all the traitors. सारे traitors के घर जला देते हैं. Second citizen, go fetch fire. जाओ जाओ आग लेके आओ. Third citizen, plug down benches. Fourth citizen, plug down forms, windows, anything. सब तहस नहस कर दो. देखो जब वायलेंस होता है ना तो क्या होता है, सब तोड़ा फोड़ी कर दो, सब ले आओ, सारी लकड़ियाँ इकट्ठा करो, जलाते हैं सीजर की बॉडी को. Exhumed citizens with the body. सारे citizens चले गए along with the body of Caesar. अब आधा काम तो मार्क एंटनी का लोगों ने कर दिया है. एंटनी, सो दिस इज अ soliloquy. Soliloquy मतलब होता है जिसमें एंटनी स्पीकिंग टू हिमसेल्फ एंड द ऑडियंस, अपने मन की बात ऑडियंस से बोल रहे हैं. एंटनी, नाउ लेट इट वर्क, नाउ द मूवमेंट हैज स्टार्टेड. अब तो काम चालू हुआ है. मिसचिफ, thou art afoot. Mischief has been personified. So mischief, शैतानी, now you have started. अब तुम्हारा काम चालू हुआ है. Take thou what course thou will. Now तुम्हारा जिधर मनो उधर जाओ. हर तरफ सिर्फ मिस्चिफ ही रहना है. So now you may take whichever course you want. अब सब बर्बादी, हर जगह से बर्बादी ही होनी है. Enter a servant. एक servant आता है. How now fellow? So what is it fellow? Servant. Sir, Octavius is ready to come to Rome. Octavius Caesar has already arrived. वो आ चुके हैं रोम में. Where is he? कहाँ है? Servant, he and Lepidus are at Caesar's house. वो और Lepidus Caesar के घर पे हैं. Antony, and thither will I straight to visit him. देखो, see, Antony ने Octavius Caesar को इसलिए स्टॉप किया था क्योंकि उस समय Rome was not safe. But now Antony has created a safe Rome for Octavius Caesar. तो वो कह रहा है, and thither will I straight to visit him, and now I shall go at once in order to visit Octavius. He comes upon a wish. He comes at the right time when I was actually wishing for him. जब मुझे उसकी ज़रूरत थी, जब मैं विश कर रहा था, उसी समय वो आया है. Fortune is merry, and in this mood will give us anything. See, fortune, किस्मत इस समय हमसे खुश है और हमें कुछ भी, कोई भी सक्सेस चाहिए अब हमें मिल जाएगी. वाई? बिकॉज लोग हमारी साइड आ चुके हैं. अब हमारी किस्मत हमारे साथ है. अब हमारा जो मन होगा हम वो करेंगे. सर्वेंट, आई हर्ड हिम से ब्रूटस एंड कैसियस आर रेड लाइक मैडमैन थ्रू द गेट्स ऑफ रोम. तो सर्वेंट जो है वो एंटनी को बता रहा है कि ऑक्टेवियस सेड दैट जब वो आ रहा था तो उसने ब्रूटस और कैसियस को देखा कैसे वो लोग मैडली थ्रू द गेट्स ऑफ रोम भाग रहे थे एंड पीपल वर फॉलोइंग. कैसे वो भागने की कोशिश कर रहे थे. एंटनी, be like they had some notice of the people. हाँ, प्रॉबली उनको कुछ हिंट मिल गया होगा दैट पीपल किस तरह से उनको टेक कर रहे हैं या मैंने किस तरह से कन्विंस किया है. हाउ आई हैड मूव्ड देम, हाउ आई हैड कन्विंस्ड देम. ब्रिंग मी टू ऑक्टेवियस. अच्छा ठीक है, नाउ टेक मी टू ऑक्टेवियस सीजर. सो आई होप दिस सीन इज क्लियर टू यू. Many students request me to make more videos. I understand it's your exams. I should make more videos, but I'm too occupied with my household chores. I have a coaching also, I have to manage that. Side by side, I'm a mother of two, and managing everything becomes sometimes very difficult. And I would like to tell you, it's almost 12 at night, and I'm making this video. My children, I'll show you the clock. This is the clock. It's 12. 12 baj raha hai. And in spite of that, I'm making the video just for you people. I hope you will love me and you'll share this video, you'll like the video, you'll subscribe to this channel. I promise to make more such videos for you people. See, my throat is also not good. In spite of that, I'm trying to make more videos. So please don't forget to like, share and subscribe to this channel. Thank you so much. Bye-bye.